You look at here. This is Feb March 2021 variant 12. Say Feb March में होता ही एक variant है basically. So it will be by default the variant 21. India में होता है वो. Basically not here. अच्छा जी. Look at question number 1. An American family is choosing between 4 holiday destinations in Europe, each at the same price. Say price same है, cost same है चारों की. The table shows the family's order of preference. First preference is Barcelona. Third is London. Second is Paris, and again the third is London. If the family goes to Barcelona, say like they are going to the first preference, what is the opportunity cost of this choice? हाँ भाई, opportunity cost क्या होती है? The next best alternative forgone. So what will be the opportunity cost if they are opting for their first preference, which is Barcelona? What is the second choice? The second choice is Paris. So obviously they won't be able to make it to Paris. So the opportunity cost of traveling to Barcelona will be the opportunity they are missing out at Paris. Hey, remember opportunity cost जरूरी नहीं है कि in terms of monetary value कि आपके पास जो भी आपके पास alternative होगा, such as for example consumption में you can consume a packet of crisp or you can consume a soft drink. That is also an opportunity cost. Say it. Look at question number 2. The diagram shows the production possibility curve for an economy. Which combination of movements correctly illustrate these changes in the production? सही है भाई. अब आपके पास ना आपको बताना है कि कौन से वाले में correctly identify हो रहा है. तीन चीजें इन्होंने आपको दी हुई हैं. The first one is short run economic growth. The second one is long run economic growth, and the third one is no economic growth at all. सही है. So no economic growth कब होगी? Let's start from here. What will be no economic growth point? K to L. सही है. K to L का क्या मतलब है? आप हाँ नहीं, लेकिन अगर आप अंदर से देखो यहाँ पे आपने मूवमेंट बतानी है ना. K की सिर्फ एक ही मूवमेंट दी हुई इन्होंने, K to L. K to L का क्या मतलब है? You are moving from inside the PPC on the curve, which means कि आपकी short run में economic growth हो रही है. You are utilizing your factors of production more efficiently. K क्या है? K represents inefficiency in the production, which means that you are not utilizing your factors of production efficiently. So K to L वाला जो ऑप्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए. अब सेकंड देखो, L to M. L to M हो सकती है नो इकोनॉमिक ग्रोथ. क्यों? क्योंकि यू आर मूविंग ऑन योर पीपीसी. रिमेंबर पीपीसी क्या होता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced in an economy with full resource utilization and fixed level of technology. तो जब आपकी ना ही resource utilization increase हो रही है, the factors of production change नहीं हो रहे, और ना ही technological level change हो रहा है, it means that you are either moving from L to M or M to N, which represents no economic growth. अगर आप अपने PPC पर हो तो कोई economic growth नहीं हो रही है आपने. सही है. तो L to M हो सकती है, L to M हो सकती है, M to N नहीं हो सकती, because M to N क्या है? Is an outward shift of the PPC, which is a long run economic growth. आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे. से इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बियॉन्ड कैपेबिलिटी कब चाहते हो आप? जब आपके यहाँ ज्यादा लेबर आ गया, इमिग्रेशन, सब कुछ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो. सही है. तो ये दो ऑप्शन है. ऑप्शन ए को तो आप रूल आउट कर दो बिकॉज ए और डी आर इनकरेक्ट. अब देखो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब आपका पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होता है. सही है. सो एम टू एन, यस, M to N जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. और दूसरा क्या है? L ना K to L. सही. K to L is not long run economic growth. K to L will be short run. सही. क्योंकि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज नहीं हो रही, आप सिर्फ अपने पीपीसी पे मूव कर रहे हो, which means कि आप अपनी रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे. तो सी भी इनकरेक्ट है. अब एक ही ऑप्शन बचा है. और K to L क्या है? शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो. तो आंसर विल बी बी. सही. तो अगर आपके पास K to L जा रहे हो ना, अंदर से N का अंदर है, N तो अंदर, N बाहर है ना. N is on the second PPC. सही है. तो जब भी इस तरह के ऑप्शन हो, लाइक यू हैव मोर देन वन ऑप्शन या दो या दो से ज्यादा ऑप्शन, तो बेहतर तरीका ये होता है कि जिस चीज में आप बहुत ज्यादा श्योर हो उसको आप उसको आप जो ना मतलब पहले राइट ऑफ करना शुरू करो कि मतलब इसमें जो है ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए. What distinguishes the very long run from the long run? Very long run or long run?
रिमेंबर डिफरेंस क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, सही, जितने भी। शॉर्ट रन में आपके एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, व्हिच इज फाइनाइट होते हैं, और एक कांस्टेंट होता है, यूजुअली कैपिटल कांस्टेंट होता है या लैंड कांस्टेंट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे चेंज हो सकते हैं, सब वेरिएबल है। लेकिन वेरी लॉन्ग रन और लॉन्ग रन का क्या डिफरेंस है, इन द वेरी लॉन्ग रन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल आल्सो इवॉल्व, सही, वहां पे आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अभी 4G चल रहा है, 3G 4G टेक्नोलॉजी आपके पास 5G आ जाए, 6G आ जाए, तो ये होता है लॉन्ग, वेरी लॉन्ग रन, सही। या तो आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर जाए, या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपकी जो इकोनॉमी को ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीपैक है 2016 से बन रहा है, सही है, जैसे ही बनेगा यू विल बी लाइक 2016 से 2000, लेट्स से अगर सीपैक 2022 के एंड में कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो 2022 से 2016 वाज द वेरी लॉन्ग रन टाइम पीरियड, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज भी आ गया, सही है। द एबिलिटी टू चेंज रिसोर्स एलोकेशन, द एबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, समझ में आई बात। वेरी लॉन्ग रन विल बी द टाइम पीरियड जहां पे आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही होगी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। रिमेंबर पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, जहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो आपके पास। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज इज अनइक्वल, द गवर्नमेंट ought to increase income tax on high earners, there should be more legal rights given to the workers to protect their status in the workplace, and D, wages of those on low income should be increased। हाँ भाई, कौन सी होगी इसमें से पॉजिटिव, बहुत आसान है ये तो। सी क्या है, देयर शुड बी मोर लीगल राइट्स। शुड का क्या मतलब है, इट्स एन ओपिनियन, ओपिनियन क्या होते हैं, नॉर्मेटिव है। A is the only statement which is positive. The distribution of income and wealth in most Western countries is unequal. ये आप प्रूव कर सकते हो डेटा से, अगर आपके पास डेटा है कि अमीर लोग ज्यादा हैं, मतलब अमीर लोगों की परसेंटेज कम है, गरीब लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल है यूरोपियन कंट्रीज में। स्टेटमेंट्स लाइक ought, should, इस तरह की जो होती है ना, wages, those should, ये सारी क्या होती है, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, सही है। ये आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आपकी वैल्यू जजमेंट होती है, ought, could, should, this should be preferred over this, ये सब नॉर्मेटिव है। जो आप डेटा से प्रूफ कर सकते हो, those are your positive statements. What could not cause a shift in an individual's demand curve for goods C? Goods C का demand curve shift now, क्यों, अगर आपके यहाँ प्राइस चेंज होगा गुड्स का, तो क्या होगा, इट विल कॉज मूवमेंट along the same demand curve, सही है। अगर प्राइस चेंज होगा, इफ द प्राइस इज falling from P0 Q0 to P1 Q1, movement along the curve होगी। Advertisement will shift the curve, individual's income will shift the curve, taste will shift the curve, सही। the non price factors होते हैं, they always cause shift in your demand curve, they always cause shift। प्राइस की वजह से सिर्फ मूवमेंट होती है, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, which not cause the shift ना, तो not cause क्या है, change in the price, सही है। बाकी सारी factors will cause a shift। The diagram shows the market for sugar which is initially at equilibrium price OP, ये आपका equilibrium, this is the quantity। A government then fixes the maximum price of OP1, government ने maximum price set कर दिया OP1 पे, what will happen as a result, क्या होगा, a reduction in the farmers in revenue equals to PRSP1, expenditure on sugar will equal to PRMO, farmers revenue would be P1 UNO, producer surplus will be P1SP2। हाँ भाई, बिलो द इक्विलिब्रियम है और मैक्सिमम है, तो इफेक्टिव होगा, तो ये इफेक्टिव है। देखो अब पहला वाला देखते हैं, रिडक्शन इन द फार्मर्स रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस टाइम्स द क्वांटिटी। अब अगर आपने प्राइस ये लगा दिया P1, अब P1 पे फार्मर्स विल बी ओनली सेलिंग दिस क्वांटिटी ना, व्हिच इज योर सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, तो प्राइस टाइम्स द क्वांटिटी, दिस होल एरिया विल बी द रेवेन्यू
for the farmer, which is OP1SL. तो ये वाला तो नहीं होगा, PRSP1 ये नहीं होगा, आपका रेवेन्यू होगा ये this one. अगला देखो, एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर विल बी इक्वल टू PRMO. देखो एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर एंड कंज्यूमर रेवेन्यू या कंज्यूमर इनकम इज इक्वल. जो कंज्यूमर खर्चा करेंगे वही फर्म्स पैसे कमाएंगी, प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. अगेन दिस शुड बी आल्सो इक्वल OP1SL. तो ये भी गलत है. तीसरा देखो, फार्मर्स रेवेन्यू वुड बी P1UN. अगेन फार्मर रेवेन्यू भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम. तो ये भी गलत है. प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी P1SP2. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एरिया बिलो द मार्केट प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व. तो देखो ये आपका जब आपने प्राइस P1 फिक्स कर दिया, नाउ द एरिया बिलो P1 एंड अबव द सप्लाई कर्व, ये वाला जो एरिया है, दिस ट्रायंगल P1 P2S, this will be the producer surplus because this is technically the area which is below your demand and above the supply curve. सही है? So answer will be D in this case. अगला देखो, the table shows a comparative price in equilibrium in two periods. सही भाई, एक है period 1 जिसमें market price है 50 cents, quantity traded is 10,000. एक है period 2, market price is 60, quantity है 12,000. What could explain change from period 1 to period 2? देखो period 1 से period 2 में हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी ऊपर जा रही है. होने के चाहिए था कि प्राइस कम, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी कम हो जाए. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से दिस वाज योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम 10,000. नहीं, वो तो आप इनइलास्टिक और इलास्टिकल जब बताओगे, जब वो इलास्टिसिटी का पूछे आपसे, सही है. लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाई चेंज इस तरह का क्यों आ रहा है कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है. तो देखो, अगर मेरा सप्लाई कर्व है S0 एंड माय डिमांड कर्व इज D0, मैं क्या ऐसा करूं कि प्राइस भी चला जाए 60 पर और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए. सही है. सो बेसिकली आई नीड टू शिफ्ट माय डिमांड आउटवर्ड्स. अगर डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी ट्रेडेड भी इंक्रीज कर जाएगी. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियां महंगी हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड कम होती है, बढ़ती नहीं है. सही है. so if there is an increase in the price of complement, then the demand for this product will shift inwards and increase in the price of substitute. हाँ, अगर substitute महंगा हो जाए, जैसे for example if CNG becomes more expensive, the demand for petrol will increase because more people will switch to petrol. Answer should be B. ये substitute आपका महंगा हो गया. जब substitute महंगा हो जाएगा तो लोग इस गुड पे शिफ्ट कर जाएंगे. Which example of consumer behavior would create consumer surplus? हाँ भाई, consumer surplus कैसे create होता है? Definition क्या होती है consumer surplus की? कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली होता है, मैंने एक प्राइस ये सोचा हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेरी थर्स्टी और मैंने सोचा कि यार मुझे गुड के लिए, अगर वाटर बॉटल के लिए मुझे 100 रुपए की वाटर बॉटल मिलेगी, आई विल बाय दैट वाटर बॉटल. बट लकीली आई गेट द वाटर बॉटल फॉर लाइक 50 रुपीज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन ज्यादा की हुई थी. मैं आई वाज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस बट आई एक्चुअली पेड अ लोअर प्राइस. When the market price is lower, then your willingness to pay, you have a consumer surplus. So which example of consumer behavior would create consumer surplus? ये देखो, when consumer does not spend all of her income each month. एक्सपेंडिचर से आपके कंज्यूमर सरप्लस का कोई लिंक नहीं है. When the consumer pays less, then they are willing to pay for the good. सही है. If they pay less, then what they are actually willing to pay for the good, there will be a consumer surplus. हाँ, आपने सोचा था 100 रुपए का, अगर आपको 50 का मिल जाए तो 50 का आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया. Look at question number 9.
A manufacturer reduces the price of its good after developing a more efficient manufacturing process. It makes leather belts that compete against belts made of artificial material. सही भाई, अब उन्होंने कोई efficient manufacturing process discover कर लिया, and now they are making leather belts that are competing against artificial belts. What are the likely outcomes of the change in the manufacturing process? इसका likely outcome क्या होगा? What will be the impact on the supply of leather belts, and what will be the price of the artificial belts? क्या होना चाहिए? अगर आपने कोई टेक्निक डिस्कवर कर ली जिससे आप लेदर बेल्ट सस्ते में बना सकते हो, तो उससे आर्टिफिशियल बेल्ट की डिमांड को क्या होना चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए. इफ द डिमांड फॉर आर्टिफिशियल बेल्ट डिक्रीजेस, लेट्स से दिस वाज द सप्लाई, दिस वाज द डिमांड. इफ आर्टिफिशियल बेल्ट की डिमांड नीचे जाती है क्योंकि लेदर बेल्ट सस्ती होगी, तो प्राइस कहाँ जाएगा? हाँ, प्राइस नीचे चला जाएगा. The price for artificial belt will decrease. And what will happen to the supply of leather belts? Leather belts की supply को क्या होगा? Increase क्यों होगी? क्योंकि आपकी cost of production कम हो रही है. Cost of production कम होगी, supply of leather belts will shift outwards. सही है? So the हाँ, C होगा. The supply of leather belts will shift, increase, and the price of artificial belt will fall. Cost of production कम हो रही है ना, ये लिखा हुआ है. A manufacturer reduces the price of the good after developing a more efficient manufacturing process. उन्होंने manufacturing process को efficient कर लिया, which means that their cost is falling. Look at question number 10. What is the likely price elasticity of supply of highly perishable goods and goods that have low stock? Highly perishable कौन से goods हैं जो जल्दी खराब जाते हैं? Fresh fruits, fresh vegetables. उनकी price elasticity क्या होनी चाहिए? क्यों elastic? क्यों inelastic? देखो, आप हाईली पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते. एज अ मैन्युफैक्चरर यू कैन नॉट स्टोर देम. तो आपका क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट आए आपने बेचना है. ऐसा नहीं है कि आप स्टोर करके रख लोगे, प्राइस बढ़ेगा फिर मैं मार्केट में क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा. पेरिशेबल गुड्स बाय डिफॉल्ट हैव वेरी हाई इनइलास्टिक सप्लाई. मतलब उनकी जो पीईएस वैल्यू होती है इट इज नियर 0, 0.1, 0.2. जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स रोज के रोज आते हैं मार्केट में. सही है? तो हाईली पेरिशेबल गुड्स आर इनइलास्टिक इन नेचर. सही है? दूसरा क्या है? गुड्स दैट हैव लो स्टॉक. जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तब आपकी सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक ना. आप बना ही नहीं सकते. प्राइस बढ़ जाए, आप सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज करोगे बिकॉज़ यू डोंट हैव द रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर एट योर डिस्पोजल. इनइलास्टिक होगा ना बेटा. अगर कम है आपके पास रॉ मटेरियल तो प्राइस बढ़ भी जाए, आप सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते बिकॉज़ यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर विदाउट द रॉ मटेरियल. एज अ प्रोड्यूसर यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर. सही, तो इट विल बी इनइलास्टिक. द आंसर शुड बी डी. याद रखना ये. अगला देखो. The diagram shows the initial demand curve D1 and the supply curve S1 for steel in the European Union. सही है? S1 आपकी सप्लाई है और D1 आपकी डिमांड है. In 2018 यूरोपियन स्टील फर्म्स experienced rising energy prices. उनके एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज कर गए. Which diagram shows the likely impact of this? अगर एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या चीज चेंज होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए सप्लाई चेंज? इन्वर्ट हो जाएगी सप्लाई. क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. सही है? पहले जो बिजली के आप पैसे देते थे अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे. ज्यादा दोगे तो आप कम प्रोड्यूस करोगे. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट इनवर्ट. सही है? और जब सप्लाई कर्व इनवर्ट शिफ्ट होगा, सी क्यों? सब इसमें तो आउटवर्ड हो रहा है. डी में आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड जा रहा है, इट विल शिफ्ट इनवर्ड. सही है? डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपकी इनकम वगैरह चेंज नहीं होगी. अगला देखो भाई. The manufacturer for wheat is in equilibrium at the price P. ये आपका equilibrium है with the supply of 40 million tons. Due to the drought in the growing season, supply falls to 20 million. अब क्या हो रहा है? क्योंकि अब drought आ गया है तो supply कहाँ चली गई है? 20 million पे चली गई. जहाँ पे 40 million थी वहाँ पे अब 20 हो गई. हाँ, तो आपकी जो supply है वो इस तरह से आ जाएगी. सही? Which immediate action should be taken to maintain the equilibrium
to maintain the equilibrium at P. वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस यहीं पे रहे डिस्पाइट योर सप्लाई शिफ्टिंग बैकवर्ड्स. ए क्या है भाई? ग्रांट अ सब्सिडी टू द फार्मर्स इक्विवेलेंट टू PP1. अगर आप सब्सिडी देते हो सही है which is equivalent to PP1, तो आपका जो सप्लाई कर्व है इट विल शिफ्ट यहाँ ना, ये पर यूनिट सब्सिडी है P1 और P और P1 की अगर आप सब्सिडी देते हो, एक मिनट इसको, अगर आपने P1 की सब्सिडी दी, the supply curve will shift down यहाँ, सही है. सप्लाई कर्व यहाँ आ रहा है S1 पे, ग्रांट अ सब्सिडी टू द फार्मर्स इक्विवेलेंट टू. लेकिन उन्होंने क्या करना है, अगर आप P1 पे जाते हो, मतलब आप सप्लाई S1 पे लेके जा रहे हो, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है. वो क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस को P पे मेंटेन करना है, सब्सिडी नहीं होगी. इम्पोज एन इनडायरेक्ट टैक्स इक्विवेलेंट टू PP2. अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करोगे तो सप्लाई मजीद कम हो जाएगी. प्लांट मोर वीट टू इंक्रीज द सप्लाईज टू 40 मिलियन. लेकिन अगर आप प्लांट भी करते हो वीट तो ये लॉन्ग रन में होगा, लॉन्ग टर्म मेजर है ये जो है ना, ये आपका शॉर्ट रन का नहीं है. सही है, शॉर्ट रन का मेजर नहीं है. यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ वीट टू इंक्रीज द सप्लाई. गवर्नमेंट खुद, जो गवर्नमेंट के पास वीट का स्टॉक है 20 मिलियन का, उसको मार्केट में रिलीज कर दे ताकि जो सप्लाई हमारी पीछे गई है ये वापस यहाँ पर मूव कर जाए. सही है. नहीं, इंक्रीज तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इमीडिएट एक्शन चाहिए. हाँ, तो दोनों गलत है, एक तो ज्यादा हो जाएगी और दूसरा ये कि टाइम टेकन भी ज्यादा हो जाएगा. What is used to calculate the price elasticity of demand? हाँ भाई, what is the formula for calculation of the PET? Change in quantity demanded. हाँ, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, which is D. After a series of poor harvest, a government imposes an effective maximum price on cereal. Government ने maximum price लगा दिया cereal पे. What would be the consequence of this policy? इस policy का consequence क्या होगा? Both rich and poor people would satisfy their demands equally. क्यों? नहीं, जो अमीर लोग हैं वो तो ब्लैक मार्केट में खरीद लेंगे वीट, पुअर नहीं खरीद पाएगा. सो इट इज रॉन्ग. दूसरा क्या, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग थ्रू अ ब्लैक मार्केट वुड बी प्रिवेंटेड. नहीं, ब्लैक मार्केट्स इंकरेज होंगी. हाँ. रैशनिंग वुड बी नेसेसरी टू इंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल. रैशनिंग क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यार इस इतना इनको जाएगा, इतना इनको जाएगा. और डी क्या है, द मार्केट वुड फेल टू क्लियर लीविंग अ सरप्लस ऑफ सीरियल. तो सरप्लस भी नहीं होगा, शॉर्टेज होगी. ये भी गलत है, सी होगा आंसर. रैशनिंग वुड बी नेसेसरी. गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार फी बंदा इस फैमिली को इतना वीट जाना चाहिए इनको. व्हाट वुड बी अ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? जिसमें आपकी कोई प्रोडक्शन ना हो. हाँ भाई, what would be a transfer payment? Payment made by a company to its shareholders out of its profit. Payment made for illegal documents of transfer of ownership. The payment made to retired person in the form of pension. The payment made to professional sports team for the transfer of a player. कौन सी वाली में इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन नहीं हो रही? सी. क्यों सी? क्योंकि भाई रिटायर्ड लोगों को मिलती है ना पेंशन, तो रिटायर्ड लोग तो काम करते ही नहीं है. सही. तो pensions and unemployment benefits are your transfer payment. The payment made for a professional sports team for the transfer of a player ना, अगर आप किसी प्लेयर मतलब क्लब को पेमेंट कर रहे हो तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यार वो प्लेयर आके हमारे यहाँ खेलेगा, प्रोडक्टिविटी होगी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इससे रेवेन्यू होगा, सेल्स होंगी टिकट की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The government redistributes income by rising the top rate of income tax. सही है, इनकम टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया. And using money raised to finance additional benefits to students and unemployed. सही है. और जो अनएम्प्लॉयड है या स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने ज्यादा फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया. अंडर विच कंडीशन विल द टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द मोस्ट? किस कंडीशन में टोटल स्पेंडिंग बढ़ेगी इकोनॉमी में? हाँ, क्या होगा? मतलब वाईडी बतानी है ना आपको दोनों केस में. तो बी क्यों?
बी क्यों? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? वाईडी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर आप अमीरों पे टैक्स लगाओ, सही है, तो उनकी कंजम्पशन कम होगी, जाहिर है उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, तो वो कंजम्पशन तो अपनी कम करेंगे, लेकिन their consumption will fall by a very insignificant proportion if the YED value is less than 1। अगर YED की वैल्यू 1 से कम है, सही है, तो अगर इनइलास्टिक है इनकम इलास्टिसिटी, इसका मतलब है कि आपने इनकम को बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्वांटिटी में बहुत कम फर्क पड़ा, सही है, बिकॉज इट इज लेस देन 1। तो ये दोनों केसेस होने चाहिए, ए और बी तो होंगे ही नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। नाउ लेट्स लुक एट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। अगर मैं स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड लोगों की इनकम थोड़ी सी बढ़ा दूं, सही है, तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आना चाहिए, जब भी हमारे यहाँ कंजम्पशन टोटल इकोनॉमी में बढ़ेगी। सो देयर वाईडी शुड बी ग्रेटर देन 1। इनकी वाईडी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, और उनकी इनइलास्टिक होनी चाहिए। जिनसे आप पैसे ले रहे हो उनकी इनइलास्टिक हो ताकि उनकी क्वांटिटी कम फॉल करे, जिनको आप पैसे दे रहे हो उनकी इलास्टिक होनी चाहिए ताकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा से इंक्रीज करे, जब ही जाके आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी। समझ में आई वाली बात? थोड़ा मुश्किल था। A government wishes to increase the supply of houses, supply बढ़ानी है भाई houses की। It pays a subsidy to brick manufacturers to increase the supply of bricks to S2। Supply bricks की S2 पे ले गए by paying them a subsidy। The diagram shows the supply and demand for the bricks। Which size of subsidy per unit is required to increase the supply to S2? Remember, आपकी per unit subsidy क्या होती है? Parallel difference between the supply curves। Parallel difference क्या है यहाँ पे? What is the parallel difference? क्या आ रहा है? S1 से S2 का parallel difference क्या आ रहा है? P3 to P1, ये रहा ना, सही। This is your per unit subsidy, P1 minus P3। This is your per unit subsidy। इसी तरह से अगर सप्लाई का पीछे जा रहा होता, let's say this was your S1 and this was your S2 because of imposition of an indirect tax, तो per unit tax भी यही होता, parallel difference। हाँ, पर reverse। Why is national defense provided by the government? National defense government क्यों provide करती है? In a free market it is excludable and rival। नेशनल डिफेंस क्या है? कौन सा टाइप ऑफ गुड है? पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दे आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो इन अ फ्री मार्केट इट इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो फ्री मार्केट में कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर नेशनल डिफेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा, और जब नहीं प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर है गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। Which statement about a rise in the general price level is correct? हाँ भाई, कौन सी स्टेटमेंट इन्फ्लेशन के बारे में करेक्ट है? It is likely to create economic winners and losers in an economy. It is never acceptable to modern government. It means that no goods have fallen in prices. It must make the average citizen poorer. क्या ए होगा? There will be economic winners and losers। सही है, कुछ लोग गेन करेंगे इन्फ्लेशन से, जैसे आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनका फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये भी होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होगी। इसी तरह से जिन्होंने उधार पे पैसे लिए हुए हैं उनका फायदा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान होगा, जैसे आपके एक्सपोर्टर्स हैं, आपके फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं। A country's terms of trade change from 100 to 95। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वो बोल रहे हैं कि देखो बेस ईयर में क्या होता है, बेस ईयर में आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 होती है। अब वो बोल रहे हैं कि नाउ द टीओटी इज 95 पे चली गई है टीओटी। हाँ, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड दिस चेंज? ये क्यों हुआ होगा? व्हाई वुड दिस चेंज अकर? A depreciation of the country's currency, a reduction in import tariff, a rise in the price of exported goods, and improvement in the balance of trade। अगर आप टैरिफ को रिड्यूस करते हो, सही है, तब क्या होगा? इंपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, सही है। इंपोर्ट के प्राइसेस कम होंगे तो डिनोमिनेटर नीचे जाएगा ना,
डिनोमिनेटर नीचे जाएगा तो ये 100 से ऊपर जाना चाहिए, ना कि 95 पे आए। 95 पे कब आएगा? जब आपका न्यूमरेटर नीचे जाए या डिनोमिनेटर ऊपर जाए, सही है, तभी जाके ये 100 से पीछे आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी ना। अगर आपकी करेंसी सस्ती हो गई, आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल मूव बिलो 100। A country replaces floating exchange rate system with managed floating exchange rate। पहले floating था, मतलब completely free था, अब उन्होंने manage कर दिया है, मतलब एक certain limit में आप जो allow कर रहे हो अपनी currency को to float। Which statement is correct? Its central bank would have to intervene more frequently in the foreign exchange market. Its central bank would need to hold fewer exchange reserves, foreign currency reserves. C is the value of its currency would be determined by its major trading partners, and D, the value of the of its currency would be determined by the value of the dollar. पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, सिर्फ डिमांड और सप्लाई आपकी करेंसी की आपकी एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर दी, लेकिन अब आप मैनेज्ड पे चले गए, आप मैनेज कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ए होगा कि सेंट्रल बैंक को अब ज्यादा इंटरवीन करना पड़ेगा। फ्लोटिंग में तो सेंट्रल बैंक करता ही नहीं है, उसमें तो आपकी फ्री मार्केट है। अगर आप ज्यादा ट्रेड कर रहे होगे, ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे होगे, आपकी करेंसी ऊपर जाएगी, ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे होगे, करेंसी नीचे आएगी। लेकिन जब आपने मैनेज लगा दिया, अगर आप मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पे चले गए, तो लेट से ये आपने बोला कि भाई इस लिमिट के अंदर हम करेंसी को अलाउ करेंगे कि इट विल मूव फ्रीली, सही है। सो द सेंट्रल बैंक विल हैव टू इंटरवीन मोर ऑफन। What will be the immediate effect of devaluation of the currency of an economy's foreign exchange rate? अगर आपका foreign exchange rate नीचे चला जाता है तो क्या immediate effect होगा? The price of imported goods in the domestic country will fall. The price of imported goods in the domestic country will rise. The price of imported goods in the foreign currency will fall. The price of imported goods in the foreign currency will rise. D होगा, B होगा, हाँ सही है। द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक करेंसी विल राइज। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर महंगा हो गया तो आईफोन खुद ही पाकिस्तान में महंगे हो जाएंगे। हाँ अब लगा। अ कंट्री हैज अ डेफिसिट ऑन इट्स करंट अकाउंट, सही, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डेफिसिट है, करंट अकाउंट का डेफिसिट है, मतलब आपके एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं। what might help the country to reduce its deficit? डेफिसिट को कम करना है आप, मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है या इंपोर्ट्स को कम करना है, तो कैसे होगा? देखो अगर आप इनकम टैक्स रिड्यूस करते हो ना, लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे तो कंज्यूम भी करेंगे, और जब आप कंज्यूम करोगे तो आप इंपोर्टेड गुड्स भी कंज्यूम करोगे, तो इंपोर्ट्स नीचे, टैरिफ को डिक्रीज करेंगे तो इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे तो आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे। फिर सब्सिडाइज इट्स एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी दो, आप अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करो इन द इंटरनेशनल मार्केट ताकि एक्सपोर्ट्स ऊपर चले जाएं। एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगे तो आप खुद ब खुद करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस की तरफ मूव करोगे। 24 देखो, द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। देखो अब क्या कर रहे हो, पहले आपकी ना वर्ल्ड सप्लाई थी ये, दिस वाज वर्ल्ड सप्लाई, व्हिच मींस जब आपने प्राइस रखा हुआ था 10, जब इंटरनेशनल मार्केट में इस गुड का प्राइस 10 था, तो आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं दे वर प्रोवाइडिंग 8 व्हाइल द डिमांड वाज 20। सो 20 माइनस 8 जो है जो 12 है, ये कौन दे रहा है? ये आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगवा के फुलफिल कर रहे हो, और जब आपने टैरिफ लगाया तो आपका प्राइस में ऊपर चला गया गुड का, सही है, $10 से, विच मीन्स के अब आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे 10, while the demand fell to 17 because now the imports were more expensive. So 17 minus 10 is 7. This was your new contract. What is the volume in million of units of extra international trade created by the removing of tariff? सही, ये तो मैंने बताया जब आपने टैरिफ लगाया था। अब वो बोल रहे कि टैरिफ को हटा दिया, पहले टैरिफ था तो आपकी सप्लाई ये थी, अब आपने हटा दिया, नीचे ले गए, सही है, तो क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि पहले
आप 7 इंपोर्ट कर रहे थे, 7 million, now you are importing 12, so 12 minus 7 will be 5. So the 5 million will be the tariff trade created. Which item should be recorded in the financial account of a country's balance of payment? Balance of payment के financial account में, remember 3 account होते हैं, एक current account, एक capital account, एक financial account. Financial account में क्या आता है? Transactions related to मतलब current assets or financial assets such as stocks, bonds, सही है, T-bills, इस तरह की चीजें. तो कौन सी चीज होनी चाहिए? Foreign aid by China to assess the infrastructure project in African countries. Investment by Middle Eastern oil producing countries through the purchase of land and property assets in Europe. Payment by the US to other countries which house American military bases, and the profits and dividends paid by multinational companies based in Indonesia to shareholders in Asia. बी होगा, सही है. ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा. प्रॉफिट जो है ये कहां पे जाएंगे? ये जाएंगे नेट इनकम फ्लो में. हाँ, the dividends and profits will go into net income flow of your current account. अभी वाला देखो भाई, the table shows the consumer price index. consumer price index क्या होता है? जो इन्फ्लेशन मेजर करता है. मार्च में consumer price index था 151, अप्रैल में हो गया 148.6. Which statement correctly describes what happened between these 2 months? There was a decrease in the annual rate of inflation. There was a decrease in the real interest rate. There was a increase in the purchasing power of money. And D, there was an increase in the standard of living. Annual rate of inflation कैसे decrease हुआ? Rate of inflation decrease हमेशा जब होता है जब ये CPI जो है ना, ये 100 से नीचे हो, जैसे 98 पर. जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव में होगा तभी आप क्या मतलब होगा ना, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज जब होगा जब सीपीआई 100 से नीचे. देयर वाज अ डिक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट. रियल इंटरेस्ट रेट का आपको पता ही नहीं इंटरेस्ट रेट क्या है, यू कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद द रियल इंटरेस्ट रेट. सी देखो क्या, देयर वाज एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एंड डी देयर वाज एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ना आपको बहुत सारी और भी चीजें चाहिए, मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन स्टैंडर्ड, सैनिटेशन, ये सारी इनकम, ये भी नहीं होगा. देयर वाज एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर. पहले आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही थी इस रेट से, अब इस रेट से बढ़ रही है, विच मीन्स कि जो मतलब महंगाई का रेट है वो कम हो गया, हाँ स्लो हो गया, तो परचेजिंग पावर मनी की बढ़ जाए. The diagram shows the rate of inflation over time in 4 countries. सही भाई, ये rate of inflation है 4 countries का. Which country has a rising value of money? Money की rising value हो. Money की rising value कब होगी? जब आपके deflation हो. सही है, deflation कौन सा वाला है over time? Throughout कौन सी कंट्री शो कर रही है कि डिफ्लेशन हो रहा है? डी. सही है. क्यों डी? डी क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नेगेटिव में रेट हमेशा थ्रू आउट नेगेटिव पे जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ महंगाई कम हो रही है. The table shows the consumer price index CPI for an economy expressed as an index term. 100, 103, 101, 97. Which action is the government most likely to achieve? Likely to take to achieve price stability? कौन सा action government लेगी in order to ensure price stability? Appreciate exchange rate, decrease the budget deficit, increase money supply, increase interest rates. अगर आप एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट करोगे तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए. बी क्या है भाई? डिक्रीज द बजट डेफिसिट. देखो अगर आप बजट डेफिसिट को डिक्रीज कर रहे हो, सही है, बजट डेफिसिट को डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि आप जो है पहले जो आपके पास डेफिसिट था, मतलब बजट क्या होता है? टी माइनस जी, वेयर टी इज योर टैक्स रेवेन्यू एंड जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. पहले ये लेट्स से नेगेटिव 100 मिलियन था, अब ये नेगेटिव 80 पे चला गया, विच मीन्स कि अब आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और कम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहे हो. लेकिन ये पॉलिसी यहाँ पर नहीं काम आएगी. क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि ये पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओवर द टाइम द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन हो रहा है. वो बोल रहे हैं डिफ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव रहे, मतलब इन्फ्लेशन रहे थोड़ा सा,
101 increase the rate of interest, ताकि आपके यहाँ जो है वो oh sorry, it should be increase of the money supply rather than it should be increase in the money supply. आप मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा का कंजम्पशन बढ़ेगी, सही है? तो पैसा कैसे आएगा? आप नोटों की करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा दो इकोनॉमी में by printing more notes. Other things being equal, what is most likely to be reduced by falling labor productivity? Labor productivity fall कर रही है. Productivity क्या होती है? Productivity is output, total output upon input. जो भी आपका एक फैक्टर है, जैसे यहाँ पे लेबर है, आप कितना लेबर लगा रहे हो, तो बोल रहे हैं what is most likely to be reduced by falling labor productivity. Labor productivity fall कर रही है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास थे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो 5 वर्कर कर रहे थे, which means एक वर्कर जो था वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे पर वर्कर, सही है? अब क्या हो रहा है? Now my same 5 workers are let's say producing 50 units. So now 10 units are being produced. अब क्या होगा जब मेरे लेबर प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है तो what is likely to reduce? डी क्या? डी है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन. क्यों कम क्यों होगा? द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? देखो, जब आपके लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो गई. सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके मनी वैल्यू कम हो जाएगी. जो 1000 रुपए में पहले गुड्स आते थे, अब उनसे कम यूनिट्स आएंगे. A government spend money building more schools. How might this be classified? Fiscal policy है, supply side policy है, monetary policy है. किस तरह से क्लासिफाई होगा? फिस्कल क्या होती है? फिस्कल इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. तो मॉनेटरी होती है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट. तो इनमें से कौन सी वाली मतलब हो रही है? अगर गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, फिस्कल भी होगी, सप्लाई साइड भी होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्टिविटी. मॉनेटरी नहीं होगी क्योंकि ना इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है ना मनी सप्लाई. गुड जॉब.